Hi students, how are you? I think you all are fine and you have enjoyed your Eid purportedly and very religiously. So in the last class we had discussed about the continuity concept. Okay, so in that continuity concept I had told you that two concepts are there: left hand limit and the right hand limit. Okay, left hand limit is what and right hand limit is what we have discussed actually very deeply, and actually that is concisely you can say that a function is continuous. Fine, a function is continuous. That means what can you say on the basis of this concept? Left hand limit and the right hand limit values will be same, then this function is continuous. So before getting getting the concept whether this function is continuous or not, we need to find the values of left hand limit and the right hand limit first. If the values are same, then this function is what? Continuous. क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट, क्यों मैं राइट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालूंगा, एंड व्हाई द वैल्यूज शुड बी सेम, and if the values are not same, then why will be coming, that means what will be coming, that means that was discussed in the last lecture. Just try to see the last lecture. You will I think you would get to know what is happening in this continuity chapter. Okay, so in this continuity concept, left hand limit, right hand limit, I will solve some questions. Okay, solve some questions. जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. अब आज जो है हम लोग एक इम्पोर्टेंट है 2-3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन fx, शो दैट द फंक्शन fx given by fx equals to x sin 1 by x, x not equals to 0 और ये 0 होता है, x equals to 0 is continuous at कहां पर? x equals to 0. that means यहां पर आपको बोला गया है at x equals to 0 check whether this function is continuous or not. That means x equals to 0 में आप ऐसे just you will stand on this location, that means on this point x equals to 0. At first you will move to the left side of 0, and secondly you will have to move to the right side of 0. So whenever just you will be moving to the left side, that will be left hand limit, and when you will move to the right side, that will be right hand limit. Am I right? Okay, am I clear? So left hand limit में 0 से पीछे आएंगे, राइट हैंड लिमिट में 0 से सामने जाएंगे. तो लिखो here at x equals to 0 में हम लोग चेक करेंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? x लेस देन 0, और राइट हैंड लिमिट क्या है? x ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे? मैंने शॉर्टकट बोल दिया था कि h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h. That means in class 11 we had discussed the same thing in the limit chapter as well. Okay, so in the limit chapter we have discussed these things. So it is not new. That is not the new concept that was discussed earlier. Okay, so limit h tends to 0. That means 0 minus h. 0 लिखने से क्या फायदा है? माइनस h प्लस h. ठीक है, तो लिमिट h tends to 0. That means ये f of x है. अब x less than 0, x greater than 0 for both the cases, which function is going to be chosen here? Just try to see the function. यहां पर देखो x not equals to 0 लिखा हुआ है. x not equals to 0. What does it mean? x not equals to 0 means है, that means x less than 0 or x greater than 0. For both the cases, fx will be same. fx क्या होगा? ये. अब जब x equals to 0 हो जाए तब 0 होगा. ठीक है, तो f less than 0, that means 0 से छोटा, यही फंक्शन यूज करेंगे.
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अब यहां पर तो एफ ऑफ एक्स नहीं है, यहां पर क्या है, एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच। दैट मीन्स एक्स के जगह आप लोग क्या यूज करेंगे, माइनस एच, है कि नहीं? तो लो माइनस एच लो। दैट मीन्स एक्स के जगह देखो ये फंक्शन है, एक्स के जगह तुम्हें माइनस एच पुट करना है, बस ये एक्स के जगह माइनस एच साइन ये 1 बाई माइनस एच, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन फंक्शन में द माइनस साइन विल कम आउट, तो कम आउट होने से क्या होगा, लिमिट टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 बाई एच, राइट। जैसे कि हम लोग जानते हैं द साइन थीटा, the values of sin theta will be lying between -1 and 1. So that means यहां पर sin 1 by h हो या sin कुछ भी हो, values जो है वो लाई करेगा -1 और 1 के बीच। That means ये जो पार्ट है ना, इसका आंसर जो है -1 और 1 के बीच ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहां पर साइड में तुम लिखो since sin 1 by h will be lying, ऐसे लिख लो, will be lying between -1 and 1। अब यहां पर लिमिट एज का वैल्यू 0 जो है वो पुट कर दो, तो 0 इंटू एनीथिंग, आंसर इज व्हाट, आई थिंक 0 ही मिलेगा तुम्हें, 0। देखो यहां पर तो ये जो आंसर है ना, इसका आंसर तो 1 और -1 और 1 के बीच कुछ ना कुछ होगा, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट कुछ ना कुछ होगा, कांस्टेंट ही होगा। और सामने एच है, एच का वैल्यू 0 आप पुट करोगे, 0 इंटू एनी कांस्टेंट, आंसर इज 0, ठीक है। राइट लिमिट में जाओ, राइट लिमिट में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर भी सेम h इंटू एक्स के जगह क्या पुट होगा, प्लस h, दैट मींस ये भी सेम कॉन्सेप्ट ही है, ये भी ये सेम लाइन लिखोगे यहां पर साइन इन h विल बी लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। सो अगर मैं h का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 0 इंटू दिस, इसका आंसर तो -1 और 1 के बीच लाई करेगा, नो नीड टू कंसीडर दिस थिंग्स, 0 इंटू एनीथिंग, आंसर इज 0। सो हियर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 में वैल्यू कितना है, 0, f of 0 सेम है, so fx is continuous, that means there is no breaking point, that means there was no point where this function stopped, okay, there is no breaking point, there is no point where this function is stopped, the function was going on all through the, that means all through the functions, that means all through the roads, okay। so ये हो गया आपका ये, ठीक है। फिर examine the function, next question, examine the function, if you have any doubt or any queries just you can ask me, okay, no problem, बट आई थिंक इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम्स जो है नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लिखो एग्जामिन, सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द फंक्शन, examine the function fx equals to cos t pi by 2 minus t, pi by 2 minus t, t not equals to pi by 2, ठीक है। और ये x होगा, ठीक है, और ये 1 जब x equals to pi by 2 है, is continuous at x equals to pi by 2. So obviously this function needs to be checked at x equals to pi by 2 because all the question depends on x equals to pi by 2, that you can see x equals to pi by 2 ही डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है। तो
यहां पर देखो, नाउ एट x equals to pi by 2 we are going to check whether this function is continuous or not on this x equals to pi by 2. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जाओ. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या है? x लेस देन pi by 2. वेरी गुड. और राइट हैंड लिमिट में क्या है? x ग्रेटर देन pi by 2. ऑब्वियसली. तो ये कैसे लिखा होगा? ए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या होगा? pi by 2 से छोटा, दैट मींस pi by 2 माइनस h. और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैसे होगा? f ऑफ pi by 2 प्लस h. अब f of pi by 2 minus h, pi by 2 plus h, for both the cases the same function will be chosen. You can see here. ठीक है, because x not equals to pi by 2. Not equals to means what? Either the case will be less than or greater than. The function, the same function supposed to be chosen for solving the question. Okay, so यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0. देखो यहाँ पर x के जगह क्या पुट करोगे? x के जगह pi by 2 माइनस h. और यहाँ पर जब तुम करोगे x के जगह क्या पुट करोगे? pi by 2 प्लस h. जो ब्रैकेट में होगा वही x के जगह पुट करोगे. तो यहाँ पर देखो x के जगह देखो ये फंक्शन है, लिख लो cos x. देखो x के जगह क्या पुट होगा? ये बाई pi by 2 माइनस x के जगह pi by 2 माइनस h. अब थोड़ा सॉल्व करना है. लिमिट h टेंड्स टू 0. जैसे कि हम लोग जानते हैं इन क्लास 10 वी हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट cos 90 माइनस थीटा, दैट मींस sin थीटा बाय, यहां पर थीटा की जगह h है. cos 90 माइनस थीटा दैट मींस sin थीटा. और यहां पर pi by 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस h. अब ये तो फॉर्मूला शायद आप लोगों को मिला होगा क्लास 11th में. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल्स टू 1. ठीक है, फिर से ये करो लिमिट h टेंड्स टू 0. यहां पर क्या होगा? cos x के जगह क्या होगा? pi by 2 प्लस h विल बी रिप्लेस्ड. ओके, और यहां पर pi by 2 माइनस pi by 2 प्लस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0. अब बोलो इसका आंसर क्या है भाई? दैट मींस cos 90 प्लस थीटा. दैट मींस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट. ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन बैठेगा. और 90 है, दैट मींस cos तो चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. दैट मींस माइनस साइन h बाय यहां पर माइनस h. ये भी माइनस माइनस कैंसिल, दैट मींस इसका आंसर भी 1 है. तो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी सेम है. और x इक्वल्स टू पाई बाई 2, जब x का वैल्यू पाई बाई 2 हो तो भी आंसर 1. दैट मींस इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? f ऑफ पाई बाई 2. दैट मींस x का वैल्यू जब पाई बाई 2 हो, x का वैल्यू क्या है? 1. दैट मींस तीनों का रिजल्ट सेम. सो fx इज कंटिन्यूअस. fx is continuous. That means there is no breaking point. That means indirectly I want to say that if the limit exists, then this function is continuous. So that means if you want to check the continuity, then you will have to check whether the limit of this function exists or not at the particular point, which will be given in the question. Here you can see the x equals to pi by 2 is given, and that's why we have checked the continuity. That means the existence of the limit at x equals to pi by 2. Okay, right? तो ये गया सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, फिर करो, बहुत सारा क्वेश्चन है. ठीक है, आओ. शो दैट fx नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. जल्दी जल्दी से करो. show that fx 5x minus 4 ये सब क्लास 11 का ही है. जस्ट हम लोगों को थोड़ा रिमाइंड करना है. जस्ट वी आर ट्राइंग टू रिमाइंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स whatever we got in the last class. We are trying to just recall all these things.
4x cube minus 3x. Okay, 1 less than x less than 2. Okay, is continuous at x equals to 1. x equals to 1 में कंटिन्यूअस है कि नहीं वो तुम्हें चेक करना है. ठीक है, दैट मीन्स x equals to 1 में whether this limit exists or not, you need to check these things. Okay, so how can you check? We need to find left hand limit and the right hand limit values first, and after that if the values same, then the limit exists. If the values are not same, then limit does not exist. Okay, so now at x equals to 1, two cases will be there. Left hand limit, that means x less than 1, and right hand limit, that is x greater than 1. Right? Now limit h tends to 0. What you need to write here? F of less than 1 minus h. And here limit h tends to 0, f of 1 plus h, because it is greater than 1 case. Greater than 1 say greater, 1 plus, 1 minus. So limit h tends to 0. Now you tell me, for 1 minus, that means less than 1 case, which function will be chosen here? For less than 1, दोनों केस में देखो less than 1 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये देखो less than 1, that means fx is what? this one. ये फंक्शन अभी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में चूज करें, और x के जगह क्या रिप्लेस होगा? 1 माइनस h. तो दैट मीन्स f, यहां पर f तो नहीं लिखना है, क्या होगा? 5 इंटू एक्स, दैट इज 1 माइनस h. 5 इंटू 1 माइनस h माइनस 4. ठीक है, देखो x के जगह मैंने 1 माइनस h रिप्लेस कर दिया. h का वैल्यू 0 बिठा दो, बिकॉज देयर इज नो डिनोमिनेटर पार्ट. if you don't have any denominator part, then you can use the limit directly. Okay, so h का वैल्यू 0, तो आई थिंक 5 माइनस 4 रहेगा, आंसर इज 1. यहां पर भी सेम देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0. अब f of 1 प्लस h, दैट मींस ग्रेटर देन 1. अब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, कौन सा केस देखो, कौन सा केस x का वैल्यू ग्रेटर देन 1? सेकंड केस. सो दैट मींस 4x क्यूब, x के जगह क्या आएगा? देखो भाई, ये आएगा माइनस 3 इंटू दिस वन. अब x का वैल्यू जो है, h का वैल्यू जो है 0, देयर इज नो डिनोमिनेटर, तो व्हाई शुड आई सॉल्व दिस थिंग्स? व्हाई शुड आई एक्सपांड बाय यूजिंग दिस क्यूब एंड दिस blah blah blah? We don't need to actually expand these things because there is no denominator part. We need not to calculate these things. Directly we can use the limit h equals to 0. Just put the limit h equals to 0. Then I think 4 minus 3, answer is 1. So here left hand limit, right hand limit का आंसर भी सेम, और तीसरा x equals to 1 में, तो देखो x equals to 1 वाला केस भी तो ये है ना, देखो less equals to है ना, इसमें भी ये होगा ना, तो इसमें आंसर क्या आया था? 1 ही आया था, तो 1 ही होगा. सो fx is continuous at x equals to 1. बस क्या पुष्टि. तो अभी आप आएंगे, नाउ वी विल प्रोसीड टू क्लास 12 क्वेश्चंस. क्लास 12 लेवल क्वेश्चन. These are all very important questions for the exams. These are all NCERT level questions. In NCERT book you will get these questions. Okay, so now we will solve some advanced level questions. Discuss the continuity of the function given by. Discuss the continuity of fx mod x minus 1 plus mod x minus 2 at x equals to 1 and x equals to 2. At x equals to 1 and x equals to 2. दो पॉइंट में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है. तो बिफोर checking the continuity, you need to write the given fx in standard form. It is not in the standard form. You can see fx is mod. By using this mod, you can't solve these questions. So before solving this question, at first
you need to exclude this mod. mod को हटाना है यहां से, mod को हटाना है. After excluding this mod, you will get some intervals. Actually, you will get some intervals, and by using these intervals and by using the different structure, you will come to know whether this function is continuous or not at x equals to 1 and x equals to 2. Am I right? Okay. So सबसे पहले गिवन जो फंक्शन है उसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करेंगे. कैसे? देखो, मॉड फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, बहुत सारा लेक्चर्स. क्लास 11th में भी मॉड फंक्शंस मैंने बहुत बार डिस्कस किया था. वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. ये जो मॉड जो है हमारा पीछा जो है वो नहीं छोड़ेगा, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ. ओके, सो यहां पर fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2. ये मॉड है, ठीक है. अब मॉड को कैसे तोड़ना है जानते हैं क्या? मॉड को कैसे तोड़ना है? जैसे सपोज साइड में थोड़ा लिखो, fx इक्वल्स टू अगर मॉड x हो उससे दो वैल्यू निकलता है, प्लस x माइनस x. जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू लेस देन 0, राइट. जब fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 हो, यहां से भी दो वैल्यू मिलता है. एक है प्लस x माइनस 1, एक है माइनस x माइनस 1. प्लस कब होता है? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होता है, और x माइनस 1 जब लेस देन 0 होता है. कॉन्सेप्ट. fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2, यहां से भी दो वैल्यू मिलेगा, प्लस x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2. प्लस कब मिलेगा? जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 लेस देन 0. ऐसे कोई भी फंक्शन लो, मेन यही मिलेगा तुम्हें, ठीक. सो ये देखो x माइनस 1, दैट मींस ये जो है इसको थोड़ा ठीक तरह से लिखें तो दैट मींस x ग्रेटर देन 1 और ये x लेस देन 1, ये x ग्रेटर देन 2 और ये x लेस देन 2, ठीक है. और ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0. तो यहां पर देखो ये जो फंक्शंस हमें दिया गया, व्हाट एवर द फंक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, हियर टू मॉड्यूलस फंक्शंस आर देयर. फर्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन है क्या? मॉड x माइनस 1, एंड सेकंड मॉड्यूलस फंक्शन इज मॉड x माइनस 2. ओके, तो ये जो मॉड है, ये जो मॉड का वैल्यूज है, यहां पर x का जो वैल्यूज है किसमें किसमें है? यहां पर x का वैल्यू मॉड के अंदर x का वैल्यू क्या है? 1. इसमें क्या है? 2. मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया जाएगा ना उससे तुम पहले x का वैल्यू निकालोगे. यहां पर x का वैल्यू क्या है? 1. यहां पर x का वैल्यू क्या है? 2. अब बोलोगे सर यहाँ पर वैल्यू कैसे निकल गया? यहाँ पर तो इक्वल कुछ नहीं है. माइंड में थोड़ा सोच लो कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. माइंड x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 2. तो जो इंटरवल तुम यहां पर स्प्लिट करोगे, जब स्प्लिट करोगे उसको थोड़ा सोच लोगे कि स्प्लिट कैसे करोगे, ठीक है. तो इंटरवल जो है मैं स्प्लिट कर रहा हूं. देखो अब तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना है. x इक्वल्स टू 1 में कंटिन्यूटी चेक करना है, x इक्वल्स टू 2 में भी कंटिन्यूटी चेक करना है. अब x इक्वल्स टू, इफ यू वांट टू चेक द कंटिन्यूटी at x equals to 1, the two cases are required. First cases is what? Less than 1, greater than 1. x equals to 2 में अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो less than 1, greater than 1. 2 केस जरूर करना, ठीक. तो यहां पर this less than 1, greater than 1 case is not given in the question, but we need to write these things forcefully, not forcefully, according to the concept. यहाँ कौन सी? less than 1, greater than 1 case is there. तो इंटरवल को, that is the interval should be splitted in such a way that we could get less than 1, greater than 1 case as well as less than 2, greater than 2 case. ठीक है? कैसे? देखो यहां पर इंटरवल जो है हम लोग ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं. देखो 0 लेस देन x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन 2, 2 लेस देन x लेस देन 3. देखो यहां पर 3 इंटरवल बन गया. अब बोलोगे सर यहां पर 3 इंटरवल क्यों बना? 3 इंटरवल? देखो यहां पर लेस देन 1 केस भी आ गया, ग्रेटर देन 1 केस भी आ गया, लेस देन 2 केस भी आ गया, ग्रेटर देन 2 केस भी आ गया. क्योंकि at x equals to 1 and x equals to 2 you need to check the continuity.
तो अगर इस दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी आपको चेक करना है तो ये इंटरवल्स आपको स्प्लिट करना है. विल हैव टू स्प्लिट दिस इंटरवल. वी हैव टू यूज द डिफरेंट इंटरवल्स. मॉड्यूलस फंक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में ऑल टाइम इक्वल वैल्यूज नहीं देता है. डिफरेंट इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज देता है. इसलिए इंटरवल को यहां पर आपको स्प्लिट करना है. ठीक है, तो देखो यहां पर 3 इंटरवल में fx का 3 डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा. अब आओ देखो, ये कौन सा इंटरवल है? 0 से 1, मतलब 1 से छोटा 0 से ग्रेटर. अब 1 से छोटा ये वाला जो केस है, ये जो मॉड फंक्शन है, ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? साइड में लिखा हुआ है. जब x का वैल्यू लेस देन 1 हो, x का वैल्यू लेस देन 1, तब मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू क्या आता है? माइनस ऑफ x माइनस 1. माइनस ऑफ x माइनस 1, बीच में क्या साइन? प्लस. ये क्या होगा? 0 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकते हो. क्या है वैल्यू? 0.5 चूज करो. माइंड में यहां पर पुट करो 0.5 माइनस 2. आंसर क्या है? नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? आई थिंक दैट विल बी नेगेटिव. तो नेगेटिव साइन देके लिखो माइनस ऑफ x माइनस 2. ये है फर्स्ट इंटरवल का आंसर. सेकंड इंटरवल में 1 और 2 के बीच, आओ 1 और 2 के बीच लिखो. 1 और 2 के बीच क्या होगा? कोई भी पॉइंट चूज करो. 1.5 पुट करो यहां पर. 1.5 माइनस 1, ये तो पॉजिटिव दे रहा है, तो प्लस साइन देके लिखो x माइनस 1. और ये 1.5 माइनस 2, यार ये तो नेगेटिव दे रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव x माइनस 2. थर्ड इंटरवल में 2 से ग्रेटर 3 से छोटा. 2.5 वैल्यू चूज कर लो माइंड में. 2.5 बिठाओ यहां. 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू, देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव. दैट मीन्स प्लस साइन देके x माइनस 1 लिख लो. फिर बीच में प्लस साइन दे दिया मैंने, प्लस साइन. अब x माइनस 2, इसमें x का वैल्यू वही 2.5 चूज करो. 2.5 माइनस 2, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स प्लस ऑफ x माइनस 2. ये देखो 3 डिफरेंट इंटरवल्स के लिए 3 डिफरेंट आंसर्स आ रहा है. ठीक है, तो fx इक्वल्स टू, अब थोड़ा रीअरेंज कर लो. देखो माइनस x माइनस ट्वाइस x, इधर माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2, दैट मीन्स प्लस 3. सेकंड आंसर क्या आएगा? x और ये x तो कैंसिल ही हो जा रहा है. यहां पर माइनस 1 और इधर माइनस माइनस प्लस 2, दैट मीन्स 1 आएगा. इसमें ट्वाइस x माइनस 3. लो 3 डिफरेंट इंटरवल. देखो 3 डिफरेंट आंसर आ गए. ठीक है, आ गया ना? हाँ, अब ये है तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन. अब चेक करना शुरू करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ठीक है, अब अभी ये सब लिखना है ग्राफ में. पॉज करो, पॉज करके लिखो उसको. अब कंटिन्यूटी आपको चेक करना है एट किस पॉइंट में? कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1. आओ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट मींस ये कौन सा केस है? x लेस देन 1. तो x लेस देन 1 केस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है आपको? x लेस देन 1. देखो ये फंक्शन माइनस ट्वाइस x प्लस 3, और x की जगह क्या पुट करना है? 1 माइनस h पुट करो. दैट मींस माइनस ट्वाइस x की जगह 1 माइनस h. देखो प्लस 3, h का वैल्यू 0 बिठा दो. 0 बिठाओ, आंसर क्या है? माइनस 2 प्लस 3, दैट इज आंसर इज 1. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालो. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ऑब्वियसली किसमें? x ग्रेटर देन 1. तो x ग्रेटर देन 1 केस बोलो यहां पर फंक्शन कौन सा होगा? सामने लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1. कहां दिखाई दे रहा है? ये इसमें तो 1 है रे भाई, डायरेक्ट 1. तो इसमें तो लिमिट यूज करना जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर 1 लिखो. तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहा है, बस आंसर इज 1.
सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है। सिमिलरली एक्स इक्वल्स टू 2 में भी तुम चेक कर सकते हो। ये लिखो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, है पॉज करो, पॉज करके लिख लो। और x इक्वल्स टू 2 में बात एक ही होगा भाई, यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 में देखो ये 2 माइनस h होगा और 2 प्लस h होगा। फंक्शन थोड़ा यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा ना, है। अब 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, देखो 2 से छोटा ये फंक्शन, ये तो 1 है भैया, डायरेक्ट 1, तो आंसर इज 1। यहाँ पर तो लिमिट यूज करना जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट 1। 2 प्लस h दैट मींस ये देखो 2 प्लस h दैट मींस ग्रेटर देन 2 केस। देखो ग्रेटर देन 2 केस के लिए कौन सा फंक्शन, ट्वाइस x माइनस 3। और x की जगह क्या लिखना है आपको, ट्वाइस x माइनस 3। आंसर क्या आएगा, देखो x की जगह 0 पुट करो, आंसर 1 ही आएगा। देखो 2 2 4 माइनस 3 1, तो यहां पर भी सेम आ रहा है, एट x इक्वल्स टू 2 लिख दो। That means this given function is continuous at x equals to 1 as well as x equals to 2। ठीक है। हाँ, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ, बोर्ड के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है। अब आप लोगों का काम है एनसीईआरटी में इस पैटर्न का क्वेश्चंस जितना सारा है वो करेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हम लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।